वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत खास गेस्ट हैं जो कि एक आईटी कंसल्टिंग फर्म में अच्छी पोजीशन पे हैं और उनका क्रिप्टो पे बहुत इंटरेस्ट है और नॉट एज ए इन्वेस्टर बट एज एवोल्यूशन उन्होंने उसको देखा है, जिसकी सारी लर्निंग उन्होंने एक अपनी बुक में कंपाइल भी की है जिसका नाम है क्रिप्टो अनफिल्टर्ड। सो आज चलिए अनपैक करेंगे उनकी बुक को और उनके टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को। सो वेलकम विपुल ऑन आवर शो। शुरू करते हैं कि विद योर इंट्रोडक्शन, जहां हम बात करेंगे कि आपने कहां से जर्नी स्टार्ट की, आपकी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम कॉलेज और आज आप कहां हैं और कैसे ये बात करेंगे कि कैसे आपने ये क्रिप्टो की दुनिया में अपने आप को इवॉल्व किया और एक बुक भी आपने पेन डाउन करी। तो प्लीज़। First of all, thanks for having me on the show, Anuj. Really excited to be here. And let's start with the journey, right? The corporate journey. So, 2004 में, that was the time when I started to pursue my engineering in computer science. वो एक ऐसा टाइम था जब इंटरनेट ने अपनी वैल्यू एंड सॉफ्टवेयर्स ने अपनी पावर सॉर्ट ऑफ दिखाना स्टार्ट कर दिया था. सो लाइक एट दैट टाइम, राइट, द जनरल ऑप्शंस जो आपके पास रहते हैं, इफ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, ईदर यू गो फॉर इंजीनियरिंग और यू डू मेडिकल. मेडिकल वॉज नॉट माई थिंग, एंड देन इन इंजीनियरिंग यू कुड सी ओके, दिस इज अ न्यू इंटरनेट एरा, computer science sounds to be a good option, and that's how the journey kicked off. So 2004 to 8 I pursued my engineering from Murthal College. मूर्थल के अगर परांठे आपने खाए हैं, मुझे पता है लोग, काफ़ी लोग जाते हैं. So that happened, and then fortunately those days one of our key companies was TCS. So I was fortunate that third year में ही, an year prior to us finishing the college, हमारी placement हो गई थी. And then my journey started with Bombay, where I started to work with TCS in the telecom space. So Nortel Networks, which used to work with switches and telecom side, that's how I started. 2 साल बाद I wanted to get into the product side of things. So I then moved to a product based organization called Amdocs. वो भी telecom space में ही थी. अच्छी कुछ एडवांटेजेस ये थी कि इट वॉज इन गुड़गांव, विच इज़ माई होम टाउन, सो इट वॉज अ नो ब्रेनर टू कम बैक. एंड सेकेंड, एज आई सेड, इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सो आई वॉज वर्किंग देयर एज अ सीनियर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. लर्न अ लॉट अबाउट लाइक द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स एंड हाउ टू इंटीग्रेट दैट विद टेक्नोलॉजी. 7 years डाउन द लाइन लाइफ थोड़ी मोनोटोनस होने लग गई. सेम रेपिटेटिव जॉब, टास्क, सो आई नीडेड अ चेंज. एंड तब माइंडसेट ये था कि यार यू कैन स्विच कंपनीज, वो एक ऑप्शन है ही, बट देन लेट्स लुक फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. देन आई डिसाइडेड कि यार चलो, हाउ अबाउट गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज. आई स्टडीड along with work and wrote GMAT and ended up choosing a good college. It was in US, Texas A&M College Station. And then वहाँ पे एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई. So 2015 I went to US. 2 साल I pursued my masters. Lot of learnings. That was a very good course around business and technology. So while business side of things is important, as we all know, the world around us is changing more by technology. So it was a good course that I liked. And then 2 years passed by. That was also the time then Trump first came. So those are very difficult and tough. Like when our batch went there, we thought that getting a job will be a piece of cake. But then the struggle I, along with many others, had was unlike the struggle we had back in India. So lots of networking, LinkedIn requests, continuous persistence. Finally landed a job, started working alongside Deloitte. Spent 3 years there. Saw a mix of US cities. Florida was my most loved location. I spent 2 years there, and then my final was Nashville. And then there's always something around the corner that life has in store for you. So COVID arrived. I was to get married. I still remember that flight when it was a very different experience. You couldn't connect with the cabin crew. आपका खाना भी चेयर के नीचे रखा था, right? So because there was, you couldn't have any kind of contact with the crew members, and
from heading airport straight to that hotel where you'll get quarantined for 2 weeks. That was again a good memories. Yeah, but then came back and then started working with S&P Global. I am into a product role, senior product owner right now. It's been now close to 6 years that I've been part of this space and this company. But yeah, that kind of takes us through the journey. That was great experience I think. और एक जो आईटी में हर किसी का ड्रीम होता है कि हम आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करें, और आई थिंक आपको वो एक्सपोजर भी मिला एंड दैट वाज रियली ब्यूटीफुल जर्नी. तो जैसे आपने बताया कि आप मास्टर्स करने गए एंड वहाँ आपको जॉब ढूंढने में भी इश्यूज आए. आई थिंक काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, या हर कोई वैसे ही सोचता है आज की टाइम में कि हम बाहर पढ़ने चले जाएं, जॉब्स इजीली मिल जाएंगी. बट आपने वो स्ट्रगल देखी है. आई थिंक वो क्लैरिटी आप दे सकते हो कि जैसे आज इंडिया में हम naukri.com यूज़ करते हैं या कोई भी एक जॉब पोर्टल यूज़ करते हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं. यूएस में किस टाइप से जॉब मार्केट है? लाइक फॉर एग्जांपल हम बीटेक करते हैं तो हमारे पास कैंपस प्लेसमेंट्स भी आती हैं, राइट? बट आई बिलीव यूएस में वैसा नहीं होता है, कोई कैंपस प्लेसमेंट टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो थोड़ी सी उस पर क्लैरिटी दीजिए, हाउ इट वर्क्स ओवर देयर. No, absolutely. And right, this is specifically challenge for the international students, right? So even अगर हमारे कॉलेज की बात करें, it was a pretty popular college. We used to also have career fairs जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती थी. बट सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन वॉज द वीज़ा थिंग. तो अगर 10 कंपनीज आई हैं, ओनली 1 विल बी विलिंग टू स्पॉन्सर यू फॉर अ वीज़ा, एंड आप बिना वीज़ा बाहर यूएस में काम नहीं कर सकते. सो द मोस्ट पावरफुल टूल टू गेट टू लैंड यूर जॉब इन द यूएस वॉज नेटवर्किंग. अब नेटवर्किंग के बहुत चैनल्स हो सकते हैं. वन इज़ लिंक्डइन, राइट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल, बट इट डज़ नॉट स्टॉप देयर. हम लिंक्डइन पे डेली 50 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, मैसेजेस भेजते थे. बट उसके अलावा इवन आउटसाइड ऑफ द डिजिटल टूल्स, राइट, कहीं पे कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कहीं पे कुछ मीटअप्स हो रहे हैं, टॉकिंग टू योर सीनियर्स, गेटिंग सम रेफरल्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ्स. सो मैनी वेज. बट देन मुझे याद है हमारे फर्स्ट ईयर में भी ये काफ़ी कहा जाता था कि फोकस ऑन नेटवर्किंग. फर्स्ट ईयर लोग जस्ट आए ही थे यूएस, देयर वर चिल्ड आउट, लाइक ओके हमारे पास वर्क एक्स भी है अच्छी कंपनीज में. बट देन डाउन द रोड व्हेन वी गॉट इनटू फाइंडिंग अ जॉब, वी रियलाइज्ड विदाउट नेटवर्किंग, इवन आपको बहुत अच्छा रेपुटेड कॉलेज भी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव द नेडल. सो इट्स रियली, इट वाज लाइक नेटवर्किंग. ओके, या आई थिंक वो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी देगा काफ़ी लोगों को जो एस्पायर कर रहे हैं कि उनको यूएस जाना है और उन्हें पढ़ना है, या नॉट इवन यूएस, इन यूरोप एज वेल. आई थिंक सेम मॉडल वर्क्स ओवर देयर एज वेल. वहाँ पर व्हाट आई नो इज़ कि जॉब फेयर्स होते हैं वेयर यू हैव टू गो, अगेन आपको नेटवर्किंग ही बनानी पड़ती है. सो आई थिंक या दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो टेक इंडस्ट्री इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही है एआई के साथ, राइट, एंड आप एक प्रोडक्ट रोल पर हो एंड आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखते हो. सो हाउ इज़ एआई चेंजिंग थिंग्स अराउंड यू, और हाउ इट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन? वो क्या चेंजेस आ रहे हैं जो आपको दिख रहे हों? नो, ग्रेट क्वेश्चन, राइट, एंड इट्स द टॉक ऑफ द टाउन. एंड आई थिंक अब इस स्टेट पे हम सब समझ चुके हैं, विटनेस कर चुके हैं कि एआई की पावर क्या है. And we all realize कि adopting and embracing AI is the only way forward. So yeah, nothing indifferent from my perspective, right? हमारी company में भी we have a strategy in place. We are giving from a technology perspective the trainings, the certifications, the tools that developers need. On the business side as well, there's a strategy being planned, right from documentation of requirements all the way till execution, how you can drive those efficiencies via AI. So yeah, I mean it's amazing what AI can do, right? जो मुझे requirements एक दिन लग जाता था पूरा लिखने में, and those were still not perfect. Now my team says, Vipul, आपने जो परसों मुझे रिक्वायरमेंट लिख के दिया बहुत पॉलिश लग रही है, क्या आपने AI यूज़ किया था? लाइक या नो शेम, राइट, आई यूज्ड AI, इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट. देयर इज सम कस्टमाइजेशन टू बी डन, बट what
takes me a day, now it's taking me like maximum half an hour to an hour. So yeah, embracing it. I can see the change around development, documentation, execution, QA. I can see slowly there's whenever there's a change, people are slow to adapt it, but I think it's happening, and it's happening very soon, and it would be very difficult to even imagine 5 years down the line how the world is going to look with AI. या आई थिंक टोटली मेक सेंस. बट जैसे आपने देखा होगा कि ए मतलब अभी इस टाइम पे मेजर जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, बी इट यू नो टॉप 5 कंपनीज या जितनी भी मेजर हम आईटी कंपनीज सुनते हैं, काफ़ी जगह फायरिंग चल रही है. एंड ऐसा सुनते हैं हम कि रोल लाइक यू नो स्क्रम मास्टर्स या प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट ओनर्स हैं या प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, इनके रोल्स ऑब्सलीट हो जाएंगे. तो क्योंकि आप ऑलरेडी एआई यूज़ कर रहे हो इन योर रोल, तो आपका क्या उसमें थॉट है कि विल इट यू नो बी ऑब्सलीट, या नंबर ऑफ पीपल कम हो जाएंगे, या इट विल बी यू नो मोर ऑप्टिमाइज्ड विद एआई? देखो, देयर आर सर्टेन रोल्स विच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ ह्यूमन कोलैबोरेशन, राइट. तो अगर मैं अपने रोल की भी बात करूँ, टॉकिंग टू बिजनेस पीपल एंड जस्ट द नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स जिनसे आप कोलैबोरेट करते हो, तो वो ह्यूमन एलिमेंट तो उसमें रहेगा. नाउ ऑन द अदर साइड, अगर हम ये कहें कि सेम वॉल्यूम ऑफ जॉब्स रहेंगी, जॉब्स कट नहीं होंगी, आई थिंक वी आर पास दैट फेज, राइट. इफ देर आर एफिशिएंसीज, दैट विल मीन दैट यू विल नीड लेसर पीपल टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क. सो if I can handle 2 projects right now without AI, with those efficiencies with the AI, maybe I can now handle 3 or 4 projects. So the other product person which we were supposed to hire for those other 2 will probably not end up happening, right? So yes, it's going to be tricky time in terms of like how do you stay relevant. But I think if you embrace the AI piece, it's not that jobs are entirely going away. Maybe from a development or an individual contributor standpoint, maybe you have to be faster in adapting to AI, but yeah, I think as long as you adopt it and as an opportunity as well, right? Like at this point, their market has demand for AI. We don't have as many people. So if you look from a perspective कि हाँ यार, क्या मैं सबसे पहले AI सीख के इस opportunity को grab कर लूँ, right? So I think that is the mindset we should have. And yeah, that's my view on it. Yeah, I think rightly said. AI also needs a human touch. Yeah. I think कोई भी प्रोसेस ऐसी अभी एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ आइसोलेटेड वे में AI काम कर लेगा. अगेन यू नीड टू रिव्यू, यू नीड टू वैलिडेट ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो या राइटली सेड. चलिए चलते हैं हमारे सेक्शन पे जहाँ हम क्रिप्टो की बात करेंगे. सो अब आते हैं क्रिप्टो की तरफ. आपका पहला रियल एनकाउंटर क्रिप्टो के साथ कब हुआ? क्यूरोसिटी थी, हाइप थी, या स्केप्टिज्म था? That's a great question. Or if you'll read or someone will go through the book, right, it really starts with my journey. मेरा पहले इंट्रोडक्शन कब हुआ एंड हाउ आई केम अक्रॉस क्रिप्टो. सो इट गोज़ बैक टू 2016 जब मैं यूएस में अपना मास्टर्स कर रहा था. दैट वाज माय सेकंड ईयर एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, हम शाम को बैठे थे उसके अपार्टमेंट में. छुट्टियों का टाइम था. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट फॉर इंडिया. आई एंड माई फ्रेंड वी स्टेड देयर अमंग्स्ट अदर फ्यू. बट शाम को हम ऐसे बैठे थे एंड बात आई एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन एंड आई वाज लाइक, मुझे पता नहीं है यार ये क्या होता है, क्या है, कोई स्टॉक है, कोई कमोडिटी है, क्या है. एंड आयरॉनिकली उसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था. द ओनली थिंग दैट ही न्यू वॉज कि इट्स अ गुड एसेट एंड इट्स गोइंग अप. तो मेरी जर्नी भी एज अ हाइप ही स्टार्ट हुई थी. लाइक ठीक है यार, बाद में देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, बट इफ़ इट्स गोइंग अप एंड अगर तुम कह रहे हो कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो देन लेट्स मे बी इन्वेस्ट अ लिटिल बिट. बस बहुत ज़्यादा पैसे तो तब थे नहीं. वी वर कॉलेज स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी मास्टर्स इन यूएस, वी हैड अ गुड एक्सपेंस देयर. सो बट या, इट स्टार्टेड एज अ हाइप, नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट सीइंग कि कल चार्ट्स एक्स थे, अब आज थोड़े और बढ़ गए हैं, अगले दिन मॉर्निंग में उठ रहे हैं थोड़े और बढ़ गए हैं. So it started with hype and yeah, that's how the journey started. Great, great. क्या आपको याद है वो मोमेंट जब आपको लगा हो कि जब आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू किया हो या जब आपने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया हो कि
दिस इज़ मच बिगर देन आई थॉट अबाउट इट? ऐसा एक्चुअली कोई एक सडन मोमेंट तो नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, बट देन ओवर द ईयर्स जब मैंने देखा कि अडॉप्शन बढ़ रहा है अक्रॉस द कंट्रीज, more and more articles on the web, more influencers on the YouTube, more common people talking about it, then slowly and suddenly you knew कि it is here to stay and it's bigger than you think. तो early days में ऐसा कोई flip of the switch moment तो नहीं था where you felt okay this is going to be that big thing, but then with time as you saw that adoption increasing and more people talking about it, तब लगा हाँ it's something big, not to be ignored, and yeah, that's how it sort of came through. ओके, परफेक्ट. आज भी काफ़ी लोगों को ना क्रिप्टो से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स हैं, राइट? या तो लोग इंटिमिडेटेड फील करते हैं. तो आपके हिसाब से ये क्यों है, मतलब बेसिकली ये थॉट ऐसा क्यों है कि लोग ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं या सोच रहे हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है एंड ये मुझे बहुत बार बहुत लोगों से मिलता है. तो क्रिप्टो एज अ सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टू अंडरस्टैंड, बट आई थिंक व्हाट वी हैव नॉट डन अ गुड जॉब विद इज प्रेजेंटिंग कि उसका यूज़ क्या और इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट? जनरली लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ डेली लाइफ में करते हैं वो इजीली समझ पाते हैं, राइट? लाइक एप्पल हो गया तो यू हैव एन आईफोन, यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, काम करता है. अमेज़ॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली कंज्यूमर्स डे टू डे में यूज़ करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट क्रिप्टो, इट इज़ नॉट डायरेक्टली अ कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट, येस फॉर इन्वेस्टमेंट, येस, बट जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम, जो यूटिलिटी है जो वो सॉल्व कर रहा है, that is like a behind the scenes thing, which is how your payments can be efficient, how they can be real time, how you can have an instant settlement. like imagine कीजिए आज भी हमारा पेचेक आता है वो once a month आता है. people don't understand the reason behind that is not कि once a month की ही कोई साइकिल है जो आपको फॉलो करनी है, राइट? अगर आपने आज काम कर लिया या 10 दिन काम किया, मे बी यू गेट पेड एवरी, रादर इन द यूएस यू ऑल्सो हैव ऑप्शन टू पे बाई वीकली व्हेन यू गेट एनरोल्ड. बट आज की बिगेस्ट हर्डल व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिशनल फाइनेंस, विच इज़ व्हाट वी कॉल इट, इज़ द कॉस्ट ऑफ मूविंग मनी इज़ नॉट एज एफिशिएंट एज इज़ द कॉस्ट ऑफ मूविंग इन्फॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम किसी को भी ईमेल भेज देते हैं, कभी भी भेज सकते हैं, कितने भी ईमेल भेज सकते हैं, वी हार्डली केयर अबाउट कॉस्ट एंड वो इंस्टेंटली पहुंच जाती है, राइट? इफ़ आई टॉक अबाउट माई यूएस एक्सपीरियंस, जब मैं यूएस से इंडिया पैसे भेजता था, इट यूज़ टू टेक अ वीक, और आपको एग्जैक्टली तब भी नहीं पता होगा कि आज मंडे को अगर आपने रेमिट की हैं कि फ्राइडे को पैसे आ जाएंगे कि नहीं मेरे अकाउंट में इन इंडिया. एंड इट यूज़ टू कॉस्ट मी लाइक $50 to $100 फॉर सेंडिंग दैट मनी. सो द होल नैरेटिव अगेन बिहाइंड क्रिप्टो इज़ to make the entire financial systems more efficient. Can money be moved beyond across borders, right? And this is us talking about across borders, right? आप सोचोगे यार domestically तो मैं अभी फ़ोन पे पेटीएम करता हूँ तो वो भी इंस्टेंट ही हो जाता है, बट इन अ ग्लोबल वर्ल्ड how you can have let's say cross border payments in seconds costing a fraction of a penny. तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि लोग कहते हैं क्रिप्टो सब्जेक्ट इज़ कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स ऑफ हाउ इज़ कॉम्प्लेक्स, बट अगर लोगों को वो नैरेटिव बताया जाए कि दिस इज़ गोइंग टू लीड टू दिस यूटिलिटी, तब आई थिंक लोग बहुत ईजीली और बेटर वे में कनेक्ट कर पाएंगे, विच करेंटली इज़ मिसिंग बिग टाइम. ओके, आई थिंक मेरे भी काफ़ी कन्फ्यूजन आपने क्लियर कर दिए. तो आई डिडंट न्यू कि ऑब्वियसली क्रिप्टो इज़ बेसिकली फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स. तो या आई थिंक बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है. तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे. तो आपको क्या लगता है कि लोगों को मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्ट जो करते हैं वो क्या इस अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं कि उसको एक एज अ टॉपिक लेके हम उसको समझ के जैसे कि आज स्टॉक मार्केट में करते हैं, या अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करूं तो ये एक फोमो है इन्वेस्टिंग के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और
मैं चाहता है कि लोग अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, बट रियलिटी आई थिंक स्टैटिस्टिकली यही है कि एज ऑफ टुडे इट इज़ मोर ऑफ अ फोमो, क्योंकि नैरेटिव अच्छा नहीं है प्रेजेंटिंग क्रिप्टो द बेस्ट वे फॉरवर्ड, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मेकिंग मनी. सो आई थिंक majority of that is FOMO, I believe. And at that being said, कुछ लोग हैं जो समझते हैं और डीप डाइव करके एक्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, एंड देन दे डिसाइड ओके वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. बट द रियलिटी राइट नाउ इज इट्स FOMO, and that again right brings to my book where that was one of the motivation where let's give as much clarity in a very simple language to people. Because at the end of the day, you are investing your hard-earned money, right? Yeah. And if you don't understand the game, it's going to be a risk for you, like forever, right? Just by looking at the charts, it's very difficult to sort of make sense of this industry. So right now it's FOMO, but I hope my book and more articles and more knowledge helps people get out of that FOMO and understand it better before they invest. आई थिंक आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि कोई भी इन्वेस्टिंग टूल है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप चाहे स्टॉक मार्केट में आज कर लो, हाँ हम स्टॉक मार्केट में अगर हम इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ वो बिग प्लेयर्स हैं, राइट. बट अगेन हमें वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम जिस भी टूल से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टूल हमारे लिए एक्चुअली कर क्या रहा है, राइट. तो या राइटली सेड आई थिंक. तो जैसे आपने कहा कि ये फोमो ही चल रहा है, राइट, फॉर क्रिप्टो. अगर हम अपनी कंट्री के हिसाब से बात करें तो लोग बेसिकली या तो गैम्बल कर रहे हैं या फोमो को फॉलो कर रहे हैं. बट अगर किसी को इन्वेस्ट करना है और कोई एक अर्ली इन्वेस्टर है जिसको एज अ टेस्ट करना है इस टूल को, तो वो क्या चीज़ें हैं जो उसको एज अ गार्ड रेल लेके चलनी चाहिए कि टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ बिग मिस्टेक while investing in this tool? No, 100%. And there's actually a very dedicated chapter जो मेरी बुक में है, जो स्पेसिफिकली इसीलिए लिखा गया है कि इस पूरे सेक्शन को कवर करे. दैट इज़ अ गाइड यू मे नीड. सो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों को आप फॉलो करें, ध्यान करें, जिससे आपकी जो वो इन्वेस्टमेंट हो वो एक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट हो. सो अगेन आपको पहले इसी चीज़ से स्टार्ट करना होगा कि फंडामेंटली आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई क्रिप्टो है क्या, मतलब मेरी डे टू डे लाइफ में वो कहाँ काम में आ रहा है, उसकी क्या यूज़ केस है, क्या यूटिलिटी है उसकी, तो वो आप समझे. तो स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग दिस स्पेस. जब आपको ओवरऑल स्पेस का एक आइडिया लग जाएगा, देन देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू शुड लुक एट, राइट, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. एंड इस स्पेस की सबसे हार्श रियलिटी ये है कि 90% इफ नॉट मोर ऑफ the projects are, you will question should they even exist. तो इतने सारे टोकन्स हो गए हैं. रादर अगर आपको अभी एक अपना क्रिप्टो लॉन्च करना है तो यू कैन लिटरली लॉन्च इट इन अ मैटर ऑफ आवर्स. दैट इज़ हाउ ईजी इट इज़. तो अभी वो लॉज नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, गार्ड रेल्स नहीं है. बट या यू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री. फिर आप समझो ओके अब मुझे पता लग गया कि ये यूज़ केसेस हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो जेन्युइनली उन यूज़ केसेस को फॉलो कर रही है, उन कंपनीज़ की कोई पार्टनरशिप्स हैं, कोई रियल प्रोडक्ट्स हैं क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या और कुछ कंपनीज़ इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हैं. सो देयर इज़ अ चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स, स्टेप्स दैट यू कैन गो थ्रू टू अंडरस्टैंड दिस स्पेस एंड देन अंडरस्टैंड ओके देयर आर सो मैनी प्लेयर्स इन दिस स्पेस. दीज आर द प्लेयर्स जो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली में बिल्ड कर रहे हैं समथिंग यूजफुल, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, टीम अच्छी है, दे हैव बाय इन फ्रॉम द रेगुलेटर्स, दे आर डूइंग थिंग्स द राइट वे. सो देयर इज दैट स्टेप बाय स्टेप गाइड. अगेन इफ यू रीड द बुक यू विल नो एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट इट. बट दैट्स रियली योर स्टेप वन, राइट, बिकॉज इफ अगेन आप इन्वेस्ट भी कर दोगे इफ यू डोंट डू ऑल ऑफ दैट, बट देन व्हाट विल एंड अप हैपनिंग इज, लेट्स से इफ दैट क्रिप्टो और दैट टोकन इट्स गोइंग थ्रू अ बैड डेज, राइट. अगर आपको नॉलेज ही नहीं है यू विल पैनिक एंड देन यू विल सेल इट, राइट. आपको पता नहीं कि वो चीज़ आगे उठेगी कि नहीं. बट इफ़ यू कंपेयर इट विद लेट्स से अदानी के शेयर्स, राइट,
आपको पता है अदानी इज़ अ बिग नेम, आई नो वॉट दे आर डूइंग. सो इन दोज केसेज वॉट विल हैपन इज इफ देयर इज अ डाउनफॉल यू विल बी लाइक ओके आई एम ओके बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट्स अदानी, राइट? सो first get to that level of knowledge, that way make your investment decisions, and that way you will also have the conviction when needed to navigate through the tough times. Okay, yeah, totally makes sense. I think सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, राइट? क्योंकि हाँ, अगर आप किसी भी नई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसकी बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है. तो आई थिंक सेम गोज हियर. तो या वेरी नाइस. एक बड़ा सवाल है मेरे तरफ से कि आपकी बुक बुक का नाम है क्रिप्टो अनफिल्टर्ड. तो अनफिल्टर्ड का क्या मीनिंग है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, क्रिप्टो का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इवन नाउ अगर आप जिस गूगल पे क्रिप्टो के बारे में कुछ न्यूज़ आएंगी, जेन्युइनली यू विल सी कि 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं कि क्रिप्टो चांद तक चला जाएगा, एंड उसी दिन आपको 2 आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे वेयर दिल से इट्स अ स्कैम, यूजलेस थिंग है, एंड ये अब ज़ीरो की तरफ जाने वाला है. तो अनफिल्टर्ड इज बेसिकली फ्रॉम अ कॉमन मैन्स लेंस showcasing crypto how it is, right? There's no bias, there's no sugar coated stories. क्योंकि मुझे 10 साल हो गए इस स्पेस में, I've seen this space, I've seen the journey, not just the technology side of things, the ups and downs, the political side of things, the geopolitical side of things, and ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इन फैक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है ये थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू स्टॉक्स एंड शेयर्स, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वॉलेटाइल. तो क्रिप्टो अनफिल्टर्ड इज रियली लाइक देयर आर नो फिल्टर्स, टेकिंग यू थ्रू द जर्नी एज इज, एंड लाइक बिल्कुल सीधी बात, राइट? बिल्कुल सीधी बात, फैक्चुअली हाउ थिंग्स वर, फैक्चुअली हाउ थिंग्स आर. सो बिकॉज different people can have different motivations to write a book, right? If I am the owner of the company or part of the blockchain, I may have slight bias writing a book. If I am an influencer, I may have a slight bias, right? So from a common man who really understands this industry but has no sort of bias, that's really what it is about, right? Yeah. Perfect. I think ये पार्ट मेरे को बहुत एक्साइट कर रहा है बुक को पढ़ने के लिए, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रीड दिस. थोड़े और सवाल करते हैं आपकी बुक से रिलेटेड ही. तो जैसे कि मार्केट में और भी क्रिप्टो से रिलेटेड बुक्स अवेलेबल हैं, आपकी बुक में ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि अभी एग्जिस्टिंग बुक्स में या कंटेंट में नहीं है? नहीं, बिल्कुल. तो काफ़ी बुक्स बहुत पहले लिखी गई थी, एंड जब मैं ये बुक लिखना स्टार्ट किया था मैंने खुद देखा कि जिस तरीके की मैं बुक लिखना चाहता हूँ, जो कॉमन मैन जिससे रिलेट कर पाए, राइट, उस तरीके की कितनी बुक्स हैं, एंड आई कुडंट फाइंड मेनी. देयर वर बुक्स, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल बुक्स अराउंड क्रिप्टो, there are a lot of like sort of deep down on blockchain books, but just crypto in general from a very basic layman's language view, ऐसी books मुझे personally बहुत कम दिखी, and having someone who has seen the journey throughout 10-11 years, right? Because a lot of people entered this space in like I think from 2020 onwards, 2018-19 onwards. So मेरी बुक इन अ वे इसीलिए सो थोड़ी अलग है कि कॉमन मैन रिटन बुक है, बिल्कुल क्लियर बेसिक एलिमेंट्स बेसिक वे में समझाती है क्रिप्टो को, और इट्स लाइक अ कनेक्ट टू द ऑडियंस थ्रू माई जर्नी, राइट? सो आई एम नॉट जस्ट राइटिंग अ बुक, इट इज़ एक्चुअली अ जर्नी दैट आई लिव्ड, जिसके थ्रू मैं व्यूवर्स को वो लेसन्स और क्रिप्टो की पूरी इंडस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वो कॉम्बो ऑफ समवन actually experiencing that journey and putting into a pen and paper, I couldn't find a lot of books around that. So that was really what actually motivated me to bring this book up. So you'll find it different once you'll go through it. Yeah, I think वो ही I think I'll need है for anyone to understand from an investor perspective. Cause जैसे कि अभी हमने देखा भी है कि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लगा रखे हैं, राइट, ऑन टैक्सेशन पर से अगर हम बात करें, तो हर कोई इन्वेस्ट करने से डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पे टैक्स लायबिलिटी बहुत हो और मैं शायद उतना प्रॉफिट ही ना कमा पाऊँ जितना मैं गवर्नमेंट को दे दूँगा.
तो हम उस बात में भी बात करेंगे कि वो क्या मिथ्स हैं जो अभी एग्जिस्ट करती हैं, जो लोग सोचते हैं कि कि गवर्नमेंट का टैक्सेशन इतना ज़्यादा है तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा आप हाईलाइट करो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये रियलिटी है, एंड अगर हम लास्ट 5 years का ग्राफ भी देखें, क्रिप्टो हैज़ नॉट मूव्ड अ नीडल। 5 साल पहले जो बिटकॉइन का प्राइस था, आज की डेट में भी इट्स प्लस माइनस उतना ही चल रहा है। एंड इवन द टैक्सेशन पार्ट इज़ राइट, देयर आर हैवी टैक्सेस। रादर विद स्टॉक्स द वे इट वर्क्स इज, अगर आपके कुछ गेन्स हैं एंड कुछ लॉसेस हैं, तो गेन माइनस लॉस वॉट एवर यू आर लेफ्ट विथ, उस पर आपका टैक्स लगता है। विद क्रिप्टो इट्स इवन वर्स हेयर, क्योंकि अगर लॉस है तो वो आपका है कंप्लीट, जो गेन है उस पे यू गेट चार्ज 31% टैक्स। सो इट्स हैवी टैक्सेशन। There are also certain other challenges and concerns like hacks, right? Like one of the major crypto exchanges, WazirX, it went through a hack and investors lost quite a bit of money, right? ऐसी स्टोरी या ऐसा केस हमने कभी अदरवाइज नहीं सुना होगा कि कोई स्टॉक हैक हो गया या कोई म्यूचुअल फंड हैक हो गया, एंड दैट टाइज टू हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स। बट या देर आर चैलेंजेस, टैक्सेशन इज नॉट हेल्पिंग। आई नो जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, दे कीप putting this proposal forward to the government. Exchanges keep putting that कि थोड़ा taxes कम करो. It is a new industry. So I agree, at the current state, it is not ideal. Having said that, India में around, and I could be wrong, don't quote me, but around 10 crore people are still invested in this. Now there has to be a reason why that is the case, right? Because the gains are such, right? Stocks में या म्यूचुअल फंड्स में, if someone gets like a 15-20% return for an year, he is happy, right? आपकी inflation is around, let's say, 8 to 10%. Yeah. You are beating inflation, you are doing a good job. Why people enter into crypto? Because when it has its good days, then you see, okay, 100% returns, even 1000% returns, right? So now that again is its own concern, should that much volatility be there, क्योंकि when it goes down it follows the same path. But the reality is we have like a huge population of India invested in crypto for that very reason, where the gains are really nice. So on the government side, I personally believe there's work to be done. Rather government को अगर crypto से taxes की बात की जाए तो बहुत heavy amount of taxes मिलते हैं, which is why also I think they don't feel like banning it. I think historically there were concerns, but वो नहीं करते because they know कि so much taxes we are collecting from this industry. So I think the tax part down the years, my hope is कि कम होगा, and there are laws and regulations around taxes globally. Different countries are following different structures. US is in the process of creating a tax structure. I hope it happens this year. India can maybe mirror that. But yeah, currently it's the taxation part. Yes, it's a little painful for investors, but still people are into this asset. I hope we get more clarity around taxes and it makes life better. Yeah, I think कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो करवाएगी तो आई थिंक इट विल बी अ गुड टूल. इट डिपेंड्स अपॉन, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो हाई रिस्क भी करते हैं. देयर आर इन्वेस्टर्स जो सेफ करना चाहते हैं. तो आई थिंक इट विल बी अ टूल फॉर पीपल जो दोज हु हैव अ एपेटाइट ऑफ टेकिंग अ हाई रिस्क. सो या आई थिंक मेक सेंस. बढ़ते हैं अगले सवाल पे. तो अगर मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपये हैं और उसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? डेफिनेटली आपने बुक में भी उस चीज़ को मेंशन किया होगा, बट एक हम शॉर्ट वे में अगर हम उसको समझ पाएँ कि अगर मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मेरी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए बेसिकली उसको इन्वेस्ट करने के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है. एंड देखिए, मेरे लिए तो एट द एंड ऑफ द डे, चाहे 10,000 हो चाहे 1 लाख, मैं पैसे डाल रहा हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मैं लूज़ ना करूँ वो पैसे, राइट? सो अगेन, इफ़ देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल. अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पास 10,000 है और मुझे 10,000 के 10 लाख बन जाए, तो उन्हें ऑब्वियसली दे विल हैव टू गो फॉर स्लाइटली रिस्की प्रोजेक्ट्स. एंड उसमें भी
statistically 99% there are chances you will end up losing all 10,000. So there's that 1% chance, क्योंकि अगर इतना easy और इतना simple होता तो सभी अपने 10,000 रुपये डालते और 10 लाख बना लेते, राइट. सो बट अगर आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर हैं हु इज़ नॉट ग्रीडी एंड उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यार मैं यूज़फुल यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स में पैसे डालूं, देन अगेन यू फॉलो दैट गाइड. आप सबसे पहले अपने आप को एक्वेंट कीजिए, ये इंडस्ट्री क्या है, इसमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स क्या हैं. इवन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग आपको मेक श्योर करना है कि आप रेगुलेटेड एक्सचेंजेस पे यू आर पुटिंग इन योर मनी. आपको मेक श्योर करना है कि आपके सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स ठीक हैं, आपने MFA यूज़ किया हुआ है, एंड यू आर मेकिंग श्योर दैट योर एसेट्स आर सेफली केप्ट. दैट इज़ अनदर कंसिडरेशन यू शुड हैव. यू शुड ऑल्सो बी अ लिटिल पेशेंट. सब मार्केट की साइकिल्स होती हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल silver was just stagnant for many years, and now with, like, you can call the US-Iran war or whatever triggered it, now we see कि okay silver की भी एक थोड़ी सी cycle लगी है. Same goes with crypto has generally followed a 4-year cycle जिसमें एक bitcoin halving event होता है, and it starts. So you have to have that patience where there will be days and months where it will not move a needle. एंड आप सोचोगे कि यार तो स्टॉक्स तो बढ़ रहे हैं, साथ में और चीज़ें भी बढ़ रही हैं, ये प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है, तो अब मैं क्या करूं. सो अगेन पेशेंस इज़ नीडेड इन अदर एरियाज टू, बट स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो पेशेंस हैज़ टू बी वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट एलाय. सो वन थिंग इज़ इन्वेस्टिंग, द अदर थिंग इज़ यू नीड ऑल दीज थिंग्स, हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, हैव दैट पेशेंस. दोज आर काइंड ऑफ लाइक द बेसिक थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, आई थिंक आपको जो स्टेप्स हैं वो तो आई थिंक विपुल की बुक से मिल जाएंगे, बट हाँ जो आपको एक पेशेंस करना है वो आपको खुद बिल्डअप करना है इन दिस टूल. अगर हमारे लिसनर्स को कोई एक चीज़ आपकी बुक से मिले, राइट, एज अ लर्निंग पॉइंट, तो वो क्या चीज़ होगी जो it will be a good learning for anyone who is going through your book? No, totally. And मैंने खुद इतनी learnings की हैं 10 साल में. मेरा खुद का बहुत learning curve रहा है as part of this industry. तो and मुझे वॉरेन बफेट का बहुत अच्छा कोट याद आता है which says be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful, right? So especially even in crypto हमने साइकिल्स देखी है when it's going up and there is so much hype, and the last thing you can do is join that hype and then fall down, right? And then similarly there are cases when you feel like oh it's not going anywhere, बाकी सब assets अच्छे perform कर रहे हैं, and that is that dip time where अगर आपकी conviction अच्छी है in projects and you believe in the technology and the industry, then you stay with your conviction and stay connected with it. So don't follow the hype. एक one of the biggest learning मैं कहूँगा especially as part of this industry, जब सब लोग बोल रहे हैं कि we are going to the moon and this and that, then stay away from the hype, stay a bit cautious. If one lesson I have to give, that would be this. I think yeah, greatly said. और apart from crypto also I think ये stock market का भी एक lesson है कि जब स्टॉक गिर रहा है तब खरीदो, और जब ऊपर जा रहा है तो यू कैन वेट बेस्ड अपॉन योर एपेटाइट. हमारे लिसनर्स जिनको ये बुक पढ़नी हो या जो इंटरेस्टेड हैं इस टूल को समझने के लिए आपके बुक के थ्रू, तो आपकी बुक कहाँ अवेलेबल है एंड हाउ कैन दे गेट दिस बुक? No, absolutely. So I partnered with Notion Press, which is a publishing platform, but the book is available. It's available on Amazon. It's available on Flipkart. It's available on Notion Press. These are the prime platforms that people go to for buying the book. So yeah, you can just, let's say if Amazon is your thing, go Amazon, type Crypto Unfiltered, and the book will be right there. Yeah, I think for the people these हम वो सारे links भी हमारे bio में share कर देंगे, so that people can directly buy. और if there is any kind of voucher or coupon available तो वो try करेंगे. हाँ, we can try for that, yes. Yeah. So
आई थिंक बहुत अच्छी लर्निंग्स मिली है, मेरे को भी बहुत क्लैरिटी मिली है विद क्रिप्टो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर बुक. टुडेज talk was really insightful. No noise, no hype, just a real talk. So thanks a lot, Vipul, for coming over and just giving us crypto unfiltered. Thank you. Thank you.